Assalamu alaikum dear students. This is class 10th. I am Mushtaq Ahmad. Today we are going to discuss an important question from the science subject. It is resistivity. Previous class में मैंने आपको कहा था कि resistance जो है it depends upon 4 factors. तो सबसे पहले हमने उसमें ये कहा था कि resistance जो है it is directly proportional to length. Resistance is inversely proportional to cross-sectional area. Resistance directly proportional to length. Resistance is inversely proportional to the cross-sectional area. जब हम इन दो इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, we get resistance is directly proportional to length and it is inversely proportional to cross-sectional area. जब हमने इन दो इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमें पता चला resistance is directly proportional to length and it is inversely proportional to cross-sectional area, or is directly proportional to L and inversely proportional to A. यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम खत्म करेंगे. इसके बाद हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे. हम ऐसे लिखते हैं और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, थोड़ा सा उल्टा करके गोल P हम लिखते हैं. आगे लिखेंगे L/A. ये जो है ये गोल P जो मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर. दिस रो इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर. It is known as resistivity of a conductor. So, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, which is having a specified length and a specified cross sectional area. If we are having a conductor with a specified length with specified cross sectional area, then the resistance is equal to the resistivity of the conductor. So, if we change the material of a conductor to the one whose resistivity is 2 times, the resistance also becomes 2 times. If we change the material of a conductor to the one whose resistivity is 3 times, the resistance also becomes 3 times. अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी स्पेसिफाइड लेंथ है, जिसका स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उस समय में क्या होगा, रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस. अगर हम किसी कंडक्टर का मटेरियल चेंज करेंगे, उसको हम ऐसा कंडक्टर बनाएंगे, उसके अंदर हम ऐसा मटेरियल इंसर्ट करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी 2 टाइम्स है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी. इफ वी चेंज द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए सबस्टेंस टू द वन whose resistivity is 3 times, the resistance also becomes 3 times. From this equation, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी R is equal to rho into L by A, इससे हम रेजिस्टिविटी का जो है वैल्यू निकालेंगे. रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, हमें मालूम है दिस R is equal to rho L by A. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R is equal to rho into L by A. यहां से हमें रो का वैल्यू निकालना है, तो रो किसके बराबर निकलेगा, रो विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रो, इट विल बी इक्वल टू, आप देखिए यहां पे हम कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे. इट विल बी इक्वल टू R into A divided by L. R into A divided by L. तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे रो जो है, रेजिस्टिविटी जो है, इसका वैल्यू निकाला. हमें यहाँ पे मालूम है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए. तो रो का वैल्यू हमें यहाँ से आसानी से मिलेगा. रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल. तो यहां पे देखिए आप, इफ वी आर हैविंग ए कंडक्टर whose length is 1 meter, whose cross sectional area is 1 meter square. If we are having a conductor जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, फॉर दैट वेरी कंडक्टर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी. फॉर दैट वेरी कंडक्टर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ एट दैट कंडक्टर. हम ऐसा कहेंगे, इफ L is equal to 1 meter, if area is equal to 1 meter square, in this situation rho will be equal to R. Rho will be equal to R. Resistivity will be equal to the resistance of a conductor. So we can define the resistivity of a conductor as
the resistivity of a conductor, the resistivity of a conductor is numerically equal to the resistance of that conductor. Resistivity will be numerically equal to the resistance of the conductor only if the length of the conductor is 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square. So we can say the resistivity is numerically equal to the resistance of a conductor if the length of conductor is 1 meter square and its cross sectional area is, if its length is 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square. So we can say in that very condition resistivity will be equal to the resistance of a conductor. तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लेंथ ये 1 मीटर है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 1 मीटर स्क्वायर है, so it becomes 1 meter cube. Length 1 meter and cross sectional area 1 meter square, it becomes 1 meter cube. तो हम रेजिस्टिविटी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. रेजिस्टिविटी of conductor, resistivity of a conductor is equal to the resistance. Resistivity of a conductor is equal to the resistance between the two opposite faces of a 1 meter cube of a substance. Between the opposite faces of 1 meter cube of a substance. मैं इसको और दोहराऊंगा ताकि आप इसको लिख के रखेंगे. Resistivity will be numerically equal to the resistance of a conductor if the length of conductor is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square. Also we can define resistivity as resistivity of a conductor is equal to the resistance between the opposite faces of a 1 meter cube of a substance. Resistivity is equal to the resistance between the opposite phases of a 1 meter cube of a substance. Now we will find the SI unit of this resistivity. What is the SI unit of resistivity? We know that this resistivity is equal to R into A divided by L. तो यहाँ पे देखिए इसकी यूनिट्स क्या निकलेंगे. रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट होता है ओम. हम ऐसे लिखेंगे, इट इज रेजिस्टेंस, इसका यूनिट है ओम, इनटू एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर. तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा ओम. यहाँ पे 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हुआ तो वहां पे क्या रहा, मीटर. इट मीन्स द SI यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज ओम मीटर. इट इज SI यूनिट इज ओम मीटर. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ओम मीटर, ओमेगा मीटर भी इसको कहा जाता है. दिस इज इट्स SI यूनिट. तो यहां पे आप याद रखेंगे ये जो ऊपर वाली फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाय एल. इसको याद रखना है इसलिए क्योंकि ये हमें बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद देती है. तो इसका SI यूनिट जो है रेजिस्टिविटी का, इट इज ओम मीटर. रेजिस्टिविटी जो है it does not depend upon the length of a conductor, it does not depend upon the cross sectional area of a conductor, but it depends upon two factors. It depends upon the nature of the conductor, nature of the material of the conductor. यानी कि कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल है उसका नेचर क्या है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टिविटी जो है इट्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. These resistivity values are used to compare the resistances of two or more than two substances. ये जो रेजिस्टिविटी है इसके वैल्यूज को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ सबस्टेंसेस की जो रेजिस्टेंसेस है उनको आपस में कंपेयर करें. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग कंडक्टर्स. कंडक्टर्स आर हैविंग वेरी लो रेजिस्टिविटी वैल्यूज. फॉर एग्जांपल वी हैव सिल्वर. इट इज रेजिस्टिविटी वैल्यू इज 1.60 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. This is silver. We are having this copper. It is resistivity value. Resistivity value is 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. We are having aluminium. It is resistivity value is 2.63 into 10 raised to power minus 8 ohm meter.
सो रेजिस्टिविटी जो है, इसके वैल्यूज को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इन ऑर्डर टू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। हमारे पास कंडक्टर्स जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। हमारे पास सिल्वर है, इसकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू है 1.60 इंटू 10⁻⁸। हमारे पास कॉपर है, इसकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इट मीन्स द रेजिस्टिविटी वैल्यू इज वेरी लो। So good conductors are the substances who are having very low resistivity values. तो इसी वजह से इनको ये जो है सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनकी हम वायर्स बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है जिसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू कम है, ये सिल्वर है। इसी को हमें इस्तेमाल करना था वायर्स बनाने में, बट इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव दिस एलिमेंट। सो copper and aluminum wires are used as transmission for transmitting these power supplies, transmission of electricity from one point to another point. ये इसी वजह से है कि इनकी रेजिस्टिविटी कम है एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। इसके साथ हमारे पास जो है यही वजह है कि एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम को हम ज्यादा ये जो है वायर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। इसके आगे ये दीज आर मेटल्स, दीज आर गुड कंडक्टर्स। व्हाट अबाउट दीज एलॉयज? दीज एलॉयज आर हैविंग वेरी हाई comparatively high this resistivity as compared to the metals from which they are made. एलॉय जो है ये दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, लेकिन एलॉयज की रेजिस्टिविटी उन प्योर मेटल से ज्यादा होती है। दे आर हैविंग हाई रेजिस्टिविटी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एन एलॉय मैग्नीन। हमारे पास एक एलॉय है जिसको हम कहते हैं मैग्नीन, MANGANIN, मैंगानीन। This is an alloy. This alloy is composed of, ये किसका बना है? It is composed of copper. It is composed of, ये कॉपर का बना होता है, ये निकल का बना होता है, और ये मैग्नीज का बना होता है। मैंगानीन जो एलॉय है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर, निकल एंड मैग्नीज। लेकिन जब इसकी रेजिस्टिविटी को देखा जाता है, इट इज रेजिस्टिविटी इज 25 टाइम्स मोर देन कॉपर। हमारे पास एक एलॉय है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंटन। इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड निकल। कॉन्स्टेंटन एक एलॉय है, ये कॉपर और निकल का बना हुआ होता है। द रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंटन इट इज 30 टाइम्स मोर देन प्योर कॉपर। इसी तरह हमारे पास जो है ये जो एलॉयज हैं, इनकी रेजिस्टिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इन एलॉयज को इस्तेमाल करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में, हीटिंग कॉइल्स बनाने में। जैसे हमारे पास एक एलॉय है जिसको हम कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम इज एन एलॉय। ये किसका बना होता है? निकल, क्रोमियम। ये जो नाइक्रोम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज। निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज। याद रखिएगा, यहां पे मैं जो ये एलॉयज के बारे में कहता हूं, मैग्नीन जो है कॉपर, निकल और मैग्नीज का बना हुआ होता है। कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकल का बना हुआ होता है। नाइक्रोम जो है निकल, कॉपर, निकल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज का बना हुआ होता है। ये जो नाइक्रोम है, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग कॉइल्स। The coils which are used in heaters, electric boilers and electric kettles, electric toasters, electric iron, उनमें जो हम coils इस्तेमाल करते हैं, they are made from these heating elements. Why these alloys are used to develop to made these heating elements? Because of two properties. इनके अंदर दो properties होती हैं जिनकी वजह से हम इनको heating elements के बनाने में इस्तेमाल करते हैं, heating coils के बनाने में इस्तेमाल करते हैं। Number one, they are having very high resistivity. The resistivity values are very high. Number one, resistivity value high का मतलब क्या होता है कि resistivity high का मतलब ये है, they are used to reduce current through the circuit. They are used
reduce the current through the circuit. Number 1. Number 2, इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी ये है जिनकी वजह से हम इनसे जो है हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं. नंबर 2 जो है वह ये है, दे डू नॉट गेट अंडर ऑक्सीडेशन. ये इजीली अंडर ऑक्सीडेशन, इनको इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होती है, और वी कैन से बर्न. They do not easily burn. They do not easily undergo oxidation with high temperatures. With heating effects ये जल्दी जो है ऑक्सीडेशन इनकी नहीं होती है या बर्न नहीं होते हैं. इसी वजह से हम इनको जो है हीटिंग एलिमेंट्स के बनाने में इस्तेमाल करते हैं. So we can say conductors are having very low resistivity values, and there is another group of substances जिनको हम जो है सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. The resistivity value lies between the resistivity value of conductors and insulators. हमारे पास जो इंसुलेटर हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एंड दी रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेकिन कंडक्टर जो है इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी. तो इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू.